حیا اگر تم نے ابھی اور اسی وقت اپنا یہ نقاب نہ ہٹایا تو میں سب کے سامنے تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اسی سرخ جوڑے میں یہاں سے رخصت کر دی جاؤ گی۔ شہوار کے ان وحشت ناک الفاظ نے پورے شادی حال میں جیسے قیامت برپا کر دی۔ نکاح کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے شوہر نے میری حیا اور میرے پردے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ حال جو چند لمحے پہلے کہکہوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اب وہاں موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ سینکڑوں نامحرم نظریں مجھے نوچنے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور لوگ کانا پوسی کر رہے تھے کہ شاید اس نقاب کے پیچھے کوئی بدصورت چہرہ یا کوئی بڑا عیب چھپا ہے، ورنہ کون سی عورت اپنی بستی بسائی زندگی کو ایک کپڑے کے ٹکڑے پر یوں دو پر لگاتی ہے۔ میری ماں کا چہرہ خوف اور ندامت سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار مجھے منت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میں ہار مان لوں، لیکن میں پتھر کی مورت بنی رہی، اپنے رب سے لو لگائے بیٹھی تھی۔ شہوار کی نظروں میں غصے کی آگ تھی اور وہ آخری بار مجھ سے میرا فیصلہ مانگ رہا تھا۔ میرا نام حیا ہے اور میری زندگی کے اس ہولناک واقعے سے چند ماہ پہلے تک نہایت سکون اور اطمینان سے گزر رہے تھے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے تھے، مگر میری طبیعت میں بچپن ہی سے ایک خاص قسم کی حیا اور گوشہ نشینی تھی۔ میری دادی جان اکثر کہتی تھی، بیٹی، عورت کا اصل حسن اس کی چھپاؤ میں نمائش ہے، نمائش میں نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کالج کی تعلیم کے دوران ہی باقاعدہ نقاب اور عبایا شروع کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب، جو کہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، ہمیشہ میرے اس فیصلے کی حمایت کرتے، مگر میری ماں اور چھوٹی بہن ثانیہ اکثر اس پر معترض رہتی۔ ثانیہ مجھ سے اکثر کہتی، آپی، آپ اتنی خوبصورت ہیں، پھر اس کالے کپڑے کے پیچھے خود کو کیوں چھپاتی ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ میں اسے مسکرا کر جواب دیتی، ہنی، جب رب نے یہ خوبصورتی دی ہے، اسی کا حکم ہے کہ اسے صرف محرم کے لیے بچا کر رکھوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی پردہ ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ پھر وہ دن آیا جب شہوار احمد کا رشتہ ہمارے گھر آیا۔ شہوار نہ صرف خوبرو تھا بلکہ شہر کے بڑے کاروباری گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ میری ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اب ان کی بیٹی کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ جب شہوار کی والدہ مجھے دیکھنے آئیں تو انہوں نے میری سادگی اور پردے کی بہت تعریف کی، لیکن وہ تعریف محض ایک دکھاوا تھی۔ نکاح سے پہلے ایک بار شہوار نے مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اسے واضح طور پر کہہ دیا، شہوار، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نامحرموں سے سامنے اپنی نمائش نہیں کروں گی۔ شادی کی تقریبات میں بھی میرا پردہ برقرار رہے گا۔ اس وقت شہوار نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا، حیا، تم بڑی عجیب لڑکی ہو، لیکن مجھے تمہارا یہ انداز پسند ہے۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے ایک ایسا جیون ساتھی دیا ہے جو میرے ایمان کی قدر کرے گا، مگر میری بھول تھی۔ شادی کی تاریخ جو قریب آتی گئی، شہوار کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ فون پر اکثر مجھ سے بحث کرتا کہ میں شادی والے دن نقاب نہ پہنوں۔ ایک بار اس نے غصے میں کہا، حیا، میرے دوست بڑے ماڈرن ہیں، وہ تمہارا مذاق ضرور اڑائیں گے کہ شہوار احمد کی بیوی کوئی مائی لگ رہی ہے، کم از کم سٹیج پر تو 1 گھنٹے کے لیے نقاب ہٹا دینا۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، شہوار، نکاح تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اسی کا اللہ کا حکم کو توڑ کر ہم اپنی نائس زندگی کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میری اس بات نے شاید اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ گھر میں بھی میری ماں اور ثانیہ نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ اکثر کہتی، آپی، آپ شہوار بھائی کا دل توڑ رہی ہیں، وہ اتنے مہنگے زیورات اور لہنگا لائے ہیں، کیا وہ سب صرف نقاب کے نیچے چھپانے کے لیے ہیں؟ لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر آج میں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا
तो कल मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। शादी का दिन आ गया, घर में खुशियों का शोर था, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लरस रहा था। बाहर हाल में बारात की आमद के ढोल बज रहे थे और मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। मैं अपने कमरे में सुर्ख और रूसी जोड़े में मलबूस थी और मेरी बहन सानिया बड़ी मुहारत से मेरा दुपट्टा और नकाब सेट कर रही थी, मगर उसके लबों पर अब भी वही तंज था। आपी, अभी भी वक्त है, ये नकाब हटा दें। शहवार भाई के दोस्तों के सामने कम से कम स्टेज पर तो इसे उतार दीजिएगा। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और खामोशी से अपनी तस्बीह पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद साहब, मौलवी साहब और 2 गवाह मेरे पास आए। निकाह के बोल पढ़े गए और जब मुझसे पूछा गया, हाया बीबी, क्या आपको शहवार अहमद वल्द अहमद अली इतने हक महर के एवज निकाह में कबूल हैं, तो मेरा हलक जैसे खुश्क हो गया। मैंने लरसती आवाज़ में 3 बार कबूल है कहा। निकाह की स्याही अभी कागज़ पर खुश्की हुई थी कि बाहर मुबारकबादों का शोर मच गया। मेरी सहेलियों ने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मेरा ज़हन मुसलसल शहवार की उस फ़ोन वाली धमकी पर था जो इसने पिछली रात दी थी। जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया तो पूरे हाल की नज़रें मुझ पर थीं। मैंने अपना चेहरा नकाब से पूरी तरह ढांप रखा था। शहवार अपने दोस्तों के जुर्मट में किसी फाते की तरह स्टेज पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में गुस्से की चमक लहराई। उसकी वालदा, मेरी सास, मेरे करीब आई और दबी आवाज़ में बोली, हाया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सब लोग मुंह दिखाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यह नकाब हटाओ ताकि लोग देख सकें कि हमारी बहू कैसी है। शहवार ने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो हंसते हुए उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। उसके एक दोस्त ने आवाज़ लगाई, यार शहवार, लगता है भाभी हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए अलग से मिठाई मांगेगी। शहवार की अना इस जुमले से पूरी तरह जख्मी हुई। इसने मेरे करीब झुककर गुस्से से सरगोशी की, हाया, मैंने तुम्हें आखिरी बार कहा था कि मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना। ये आखिरी मौका है, ये कपड़ा हटा दो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम उम्र भर रोगी। हाल में तमाशाइयों का हजूम बढ़ता जा रहा था। लोग कानापूसी कर रहे थे, अरे देखो, दुल्हा ने तो चेहरा ही नहीं दिखाया, क्या इसके चेहरे पर कोई दाग है? कोई कह रहा था, नहीं बीबी, यह तो आजकल की नई फैशन वाली परसाई है। शहवार का ज़ब्त अब जवाब दे रहा था। उसने माइक पकड़ा और खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहा, ख़वातीनो हज़रात, मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपनी मर्ज़ी से किया है और आज भी मैं एक बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। पूरा हाल खामोश हो गया, जैसे कोई अहम ऐलान होने वाला हो। शहवार ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस लड़की को मेरे वकार और मेरी ख्वाहिश से ज़्यादा अपने इस काले कपड़े नकाब की फ़िक्र हो, वो मेरे घर की जीनत नहीं बन सकती। इसने मेरे बाप की तरफ देखा जो हक्का बक्का खड़े थे और फिर मेरी तरफ मुड़कर वो हौलनाक अल्फाज कहे, हाया, अगर तुम्हें अपने इस पर्दे से इतनी ही मोहब्बत है तो जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 लफ्ज़ किसी एटम बम की तरह पूरे हाल में गूंजे। शहबाज स्टेज से उतरा और गुस्से में हाल से बाहर निकल गया। इसके घर वाले भी इसके पीछे भागे, जबकि मेरा पूरा ख़ानदान वहीं मुंजमद रह गया। मेरी माँ हाल के बीचों बीच बैठकर बैन करने लगी, है मैं लुट गई, आए हाया, तूने अपने इस पर्दे की आड़ में हमारी पगड़ियाँ उछाल दी, काश तू पैदा ही ना होती। रिश्तेदारों की ज़ुबानें कैंची की तरह चलने लगी। कोई कह रहा था, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की ज़रूर किसी ऐप को छुपा रही थी, वरना कोई शौहर शादी की पहली रात ही ऐसा फैसला नहीं करता। सानिया मेरे पास आई और गुस्से से चीखी, आपी, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब आप कौन इस तलाक याफ्तों को अपनाएगा? मैं वहाँ बुत बनी बैठी थी,
मगर मेरे दिल अपने रब से बातें कर रहा था। मैंने वहीं सजदे में सर रख दिया और रो रो कर पुकारा, या अल्लाह, मैंने ये सब सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया। अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे इन लोगों के तानों की परवाह नहीं। अभी मैं सजदे ही में थी कि अचानक हाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरी बहन सानिया की एक ज़ोरदार चीख गूंजी, अम्मी, आप ही को देखें। जैसे ही मैंने सजदे से सर उठाया, पूरे हाल में एक नूरानी रोशनी फैल चुकी थी। लोग हैरत से अपनी आंखें मल रहे थे। मेरे चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा था कि देखने वालों की आंखें चुंधिया रही थीं। वो लोग जो अभी मुझे मनहूस और ऐबदार कह रहे थे, वो खौफ और नदामत से पीछे हटने लगे। मेरी माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर रोने लगी। हाया, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे तकवे को नहीं पहचाना। तू तो अल्लाह की वली है। उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मोहल्ले का एक लड़का हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ और चिल्लाया, टीवी लगाओ, अभी अभी खबर आई है कि शहवार अहमद की गाड़ी का हौलनाक हादसा हो गया है। वो मौका पर ही हलाक हो गया है। हाल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार यह सन्नाटा इबरत का था। वो शख्स जो अभी चंद लम्हे पहले अपनी ताकत और अना के नशे में एक बेगुनाह औरत की जिंदगी तबाह करके गया था, उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। इद्दत के दिन मेरे लिए गोशा नशीनी और अल्लाह से लो लगाने का जरिया बने। उन आयाम में मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे एक बड़ी आजमाइश से निकाल कर एक बड़े मकसद के लिए चुन लिया है। मैंने अपने घर के एक हिस्से में मोहल्ले की बच्चियों को दीनी तालीम देना शुरू की। वो लोग जो कभी मुझे अछूत समझते थे, अब अपनी बेटियों को मेरे पास भेजते हुए फ़ख्र महसूस करते थे। मैंने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम रवाए हया था। वक्त पर लगाकर उड़ गया और एक दिन मेरे वालिद के एक दरीना दोस्त, जो कि खुद बहुत बड़े आलिम दीन और कामयाब बिजनेसमैन थे, अपने बेटे उस्मान के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए। उस्मान ने जब मुझसे मुलाकात की तो उसने बड़े एहतराम से कहा, हया बीबी, मैंने आपकी साबित कदमी की दास्तानें सुनी हैं। मुझे ऐसे ही जीवन साथी चाहिए थी जो दुनिया के सामने झुकने की बजाय अपने रब के सामने झुकना जानती हो। हमारा निकाह निहायत सादगी से हुआ और उस्मान ने ना सिर्फ मेरे पर्दे का एहतराम किया, बल्कि मेरे मदरसे को एक बड़ी एकेडमी में तब्दील करने में मेरी भरपूर मदद की। दूसरी तरफ मेरी बहन सानिया, जो हमेशा मॉडर्न बनने की दौड़ में रहती थी, इसकी ज़िंदगी ने एक तलख मोड़ लिया। इसने अपनी मर्जी से एक ऐसे लड़की से शादी की जो सिर्फ इसके हुस्न का दीवाना था। कुछ ही सालों बाद इसका शौहर इसे 2 बच्चों के साथ छोड़कर किसी और के साथ चला गया। आज सानिया तलाक लेकर अम्मी के घर बैठी रोती है और कहती है, आपी, मैंने ज़िंदगी भर जिस हुस्न की नुमाइश की, इसी ने मुझे धोखा दिया। काश मैंने भी आपकी तरह अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया होता। मैं इसे गले लगाकर तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सानिया का शौहर अक्सर उसे कहता था, तुम्हारा हुस्न ही मेरी पसंद है, जिस दिन ये ढल गया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसने वही किया। सानिया अब अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर पछताती है और हर वक्त जैन नमाज पर बैठकर माफ़ी मांगती है, मगर वो वक्त जो नुमाइश में बीत गया वो अब वापस नहीं आ सकता था। आज मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी में अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। मेरा बेटा और मेरे शौहर मेरी ताकत हैं और मेरा मदरसा हज़ारों बच्चियों के लिए रोशनी का मीनार है। उस्मान अक्सर मुझसे कहते हैं, हया, तुम्हारी वो एक रात की साबित कदमी ने ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी बदल दी है। मैंने ये सीख लिया कि जब आप अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो अल्लाह आपको उससे कहीं बेहतर अता फरमाता है, क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत सिर्फ उसी के हाथ में है। लोग जो कभी ताने देते थे अब दुआओं के लिए मेरे पास आते हैं।
شہوار کا انجام ایک عبرت بن گیا اور میرا صبر ایک مثال۔ واقعی جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے رب اسے پوری دنیا کے سامنے سر بلند کر دیتا ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب اس بات کی گواہی ہے کہ پردہ بوجھ نہیں بلکہ پورا حصار ہے جو ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر رب کے قریب کر دیتا ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں میں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔